Today we are going to discuss about a very important social aspect of the sociology, that is culture. Mainly the culture is denotes from the Sanskrit word sanskar, that means to denote the social channel with the use of intellectual excellence, how we are cultivating or inbuilding our culture into the society. The main thing is the culture is a mainly symbolic representation of our behavior, what we are doing into the society, that should be showing through the social aspect. That means that is a culture. Mainly it will come under the, it will discuss about the language, custom and convention, about the various parameters that are mostly seeing into the society and how we are behaving on that particular situation into a society that is well informed regarding the culture. Culture is the one of the most important concept regarding the social sciences. That social concept means it is the ideas in the society, how we are living into a society. Mainly when we are living into the society, all the surroundings they are seeing on the us, that what we are doing, what we are giving the message to the society. So it is a ideas regarding the social structure, that in the sociology, how what is the our value is there into the society. And mainly the culture also denotes that in the society a set of accepted behavioral pattern, means all the people, those who are living into the society, they are seeing what behavior they are accepting from our side and what behavior they are showing to us. So these are the common shared experiences. Like अगर हम किसी भी समाज के अंदर रहते हैं, तो समाज में रहते समय हमारे जो समाज का स्ट्रक्चर है, उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि हर प्रकार की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर एल्डर्स भी हैं और यंगर्स भी हैं। तो यंगर्स और एल्डर्स के अंदर हमें किस प्रकार से बिहेवियर करना है, साथ ही साथ जब हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई आशा रखते हैं, तो हमारे अंदर ये अजम्पशन होना चाहिए कि किस प्रकार का बिहेवियर हम उनको दें, जिससे कि वो उसी प्रकार का हमें रिटर्न वहाँ से मिले। इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें एक कॉमन एक्सपीरियंस के आधार पर, कि हम समाज के अंदर रहते हुए उस प्रकार का एक्सपीरियंस जो कि बचपन से लेकर के टिल डेथ तक अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हमें जो समाज सिखाता है, वो समाज के द्वारा जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, मे बी समटाइम एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस हमारा दोनों ही तरीके से हो सकता है। समटाइम इट इज पनिशमेंट विल बी गिवन और समटाइम द रिवार्ड्स विल बी गिवन। तो रिवार्ड्स मीन्स they are motivating us, and punishment, yes, we are doing something wrong to the society, or our behavior is wrong to the society. In such condition the society are giving to us some punishment. So the various definitions are given to the culture. That main definitions that are showing, the first definition, it is a social structure, decision making practices and the कम्युनिकेशन स्टाइल मीन्स सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि सोशल स्ट्रक्चर मीन्स हर समाज जो है, वो समाज अगर हम कहें कि सबसे पहले अगर समाज जो बना वो कहाँ से बना, इट इज़ इंडिविजुअल। सबसे पहले इंडिविजुअल से लेकर के उसके अंदर और व्यक्ति जुड़े और जुड़ कर के एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, और उस सोसाइटी के अंदर भी एक फैमिली, जो वेरियस जो फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें
मे बी फादर, ग्रैंडफादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, अंकल्स, दीज आर द सोशल स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से एल्डर और यंगर के रूप में हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए हम किस प्रकार से अपना बिहेवियर करें, वो डिसीजन हमें लेना बहुत आवश्यक होता है। और उस डिसीजन के आधार पर जो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस है, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू इनटू द सोसाइटी, that should be clarified in the mind, and that is mainly basis on the intellectual thing of the particular individual, as well as communication style, which way we are denoting or expressing our feelings, where we are sometimes we are aggressive, sometimes we are in very polite manner. When aggressive will be there, उस समय हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हमेशा हर चीज को प्राप्त करने के लिए एक पोलाइटनेस लेना जरूरी है। इसी प्रकार से जो अदर सोशियोलॉजी, जैसे कि टेलर ने ये कहा है कि कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ। नॉलेज मीन्स कि कल्चर के अंदर हमें उस पर्टिकुलर समाज में रहते हुए कितनी हमारे को नॉलेज हो चुकी है कि हम उस समाज के अंदर रह करके उस समाज की अच्छाइयाँ और उस समाज की बुराइयाँ, साथ ही साथ बिलीफ कि हमारे अंदर हम ये सोचते हैं कि समाज के अंदर ये होना चाहिए, और उन कुरीतियों को या फिर जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए या फिर उन अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपसी के अंदर व्यक्तियों का सामंजस्य बढ़ा करके और किस प्रकार से उन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि एक व्यक्ति से मोटिवेट होकर के दूसरा व्यक्ति या हमारे परिवार का परिवार का अगर कोई भी सदस्य अगर किसी चीज को जानता है तो परिवार का दूसरा सदस्य भी उस चीज को सीखे। इसीलिए जो चीजें हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर हमें कुछ सीखना है तो सीखते समय हमें ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि कल्चर जो है वो एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन, मीन्स हमारे जो पूर्वजों ने हमारे पेरेंट्स को दिया और हमारे पेरेंट्स हमारे को वो चीज़ दे रहे हैं, और आने वाले समय में उन चीज़ों को हम हमारे बच्चों को या हमारे आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हम उस जनरेशन को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमारे को कल्चर के द्वारा मिलती है। साथ ही साथ कल्चर के द्वारा हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, जिससे कि उस समाज की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जा सके और उसकी हैबिट्स के बारे में हमें नॉलेज पता लगे, जिससे कि वो एक हमारी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बने। तो इस प्रकार से हम कल्चर को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या कल्चर को हम ये कह सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग द कल्चर। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ कल्चर। मेनली द मीनिंग ऑफ कल्चर इट इज कि कल्चर क्या है। इतनी सारी बातें हमने की, वो सभी चीज़ें अगर हम कहें, वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसके अंदर की सबसे पहले मोड ऑफ बिहेवियर, विच टाइप ऑफ बिहेवियर वी आर शोइंग इनटू द सोसाइटी। क्योंकि हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, या अगर एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में अगर अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, परिवार में अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हर परिवार के सदस्य का जो बिहेवियर है वो अलग अलग तरीके से होगा। किसी का बिहेवियर अग्रेसिव होगा, किसी का बिहेवियर पोलाइट होगा, और किसी का बिहेवियर बिल्कुल नल, मीन्स दोनों ही तरफ से, ना तो वो यस में रहेंगे, नहीं वो नो के अंदर रहेंगे। दोनों ही पोजीशंस के अंदर उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कल्चर के एस्पेक्ट के अंदर। कि वास्तव में कल्चर को समझना है तो उस व्यक्ति के बिहेवियर को जरूर समझना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति के आइडियाज रिलेटेड टू बिलीफ, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, जैसे कि बिलीफ रिगार्डिंग द सुपरस्टिशियस थिंग्स या रिलीजन के बारे में। को बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान है, और बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं भगवान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बिलीफ है कि भगवान मौजूद तो है, लेकिन हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, और बहुत से व्यक्ति कहते हैं हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बिलीफ और सेंटिमेंट्स, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जनरेशन के द्वारा, क्योंकि सभी चीज़ें जो चलती है वो सब किसके आधार पर, एक आइडियोलॉजी
जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, जिसके अंदर की एक व्यक्ति की फिलोसॉफी एंड एथिक्स। फिलोसॉफी क्या मीन्स व्हाट वी आर थिंकिंग रिगार्डिंग द पर्टिकुलर थिंग। बहुत सी बार परिवार के सदस्य हमें कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए, लेकिन वेदर आप उस चीज से एग्रीड हैं या नहीं है, आपकी फिलोसॉफी क्या कहती है उसके बारे में, वो खुद आपको खुद को अपने अंदर उस चीज को लेना चाहिए। एथिक्स मीन्स हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर एथिक्स की, हमें उस चीज के लिए वास्तव में उस चीज को करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उस चीज के लिए हमें क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, वो सारी चीजें एथिक्स के द्वारा हमें पालन करनी चाहिए। जो कि एथिक्स जहाँ के भारत का संविधान के अंदर तो सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति का संविधान खुद का अपनी खुद की फिलोसॉफी के आधार पर निर्धारित होता है वास्तव में उस व्यक्ति को उस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उसके मॉरल्स एंड मैनर्स मीन्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन द थिंग्स, उसके मॉरल्स के मैनर्स के अंदर कि कहाँ पर उसको हमें उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए, किस जगह हम उस चीज़ को बोलना चाहिए, किस जगह नहीं बोलना चाहिए, ये सभी हमारे मैनर्स और मॉरल्स के अंदर आते हैं। और कस्टम्स और वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, तीनों ही चीज़ों के अंदर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें न चाहते हुए भी उन चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि हर बार हमें समाज के द्वारा ये दुहाई दी जाती है कि ये चीज़ें हमारे बरसों से चली हुई आ रही है, जो कि उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ ए फिलोसॉफी ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, जो कि जनरेशन से लेकर के अब तक, जैसे कि बहुत से व्यक्ति अगर कहते हैं भगवान की पूजा की जाए, उसमें भी भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सोसाइटी का हर परिवार का अपना एक कुल देवता होता है। तो अगर उस कुल देवता के आधार पर उस चीज़ को लेना चाहिए, तो वो ट्रेडिशनलिज्म का हमारा पारंपरिक रूप से हम पीढ़ियों दर पीढ़ी उस पर्टिकुलर पूजा को मानते हुए आ रहे हैं, तो एक हमारा कल्चर होता है, तो उस चीज़ को हमें डिनोट करना चाहिए। उसी प्रकार से रिलीजियन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो कि एक्टिविटीज़ हैं, इसके द्वारा भी कल्चर, क्योंकि हर प्रकार का, क्योंकि हर पार्टीज के रिलीजियन, अगर हम देखें हिंदू रिलीजियन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आदिकाल के अंदर तो रिलीजियन का इस प्रकार से कोई वो नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर डिवाइडेड कर दिया गया। और हर रिलीजियन के अंदर अपनी खुद की प्रैक्टिसेस हैं। अगर हिंदू को पूजा के आधार के लिए कहा जाए तो वो मंदिर के बारे में सोचता है, मुस्लिम्स को अगर कहा जाए तो वो मस्जिद के अंदर जाकर के अपनी नमाज का या पूजा वो करते हैं। उसी प्रकार क्रिश्चियन चर्च के अंदर जाते हैं तो वो उनका एक अलग ट्रेंड है, जो कि पूजा एक कल्चर तो है कि पूजा करना है, लेकिन उस पूजा करने का जो स्वरूप है वो स्वरूप हर सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके से बदल जाता है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल, आज इंडियन सिनेरियोज के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मेनली अगर देखा जाए तो कुछ पार्टीज जो कि स्टेट लेवल पर हैं और कुछ पार्टीज नेशनल लेवल पर हैं, और हर पार्टी का अपना अलग अलग एजेंडा होता है, और उस एजेंडे के आधार पर वो उसका कल्चर डिनोट करता है। जैसे कि अगर बीजेपी के लिए कहा जाए ये हिंदूवादी पार्टी है, बहुत सी अदर पार्टीज के लिए कहा जाए, जैसे कि हम केरल साइड में जाते हैं तो उसके अंदर आपकी जो वर्कर्स के लिए अलग से उन्होंने पार्टी बना रखी है, यूनियन फोरम बना रखी है, तो उसके आधार पर ही वो अपना कल्चर डिसाइड करते हैं, जिससे कि उसके द्वारा उन चीज़ों को हम डिसाइड कर सकें। तो उस कल्चर के द्वारा हम, तो इसी प्रकार से जो सोशियोलॉजी का जो मेन फंडामेंटल बेसिक थिंग्स है वो एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, कि जो कि ओल्डन डेज से चली आ रही है, वो एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर कि आगे से आगे उन चीज़ों के आधार पर उन आगे से आगे उन चीज़ों को हम किस प्रकार से बढ़ाएं या रेगुलराइज करें, ये सारी चीज़ें हमें कल्चर के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो आपकी सोसाइटी के अंदर है उस कल्चर की जो स्टैंडिंग है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेदर जो भी चीज़ की जा रही है, हम किसी भी प्रकार से दूसरे को देख करके किसी भी व्यक्ति के कल्चर के ऊपर हम कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। वेदर हो सकता है उनका कल्चर, अगर हम कहें इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, दोनों ही कल्चर, यस, दोनों दो प्रकार के कल्चर हैं, लेकिन इंडियन कल्चर की एक अपनी सीमा है और वेस्टर्न कल्चर की एक अपनी सीमा है।
और दोनों ही सीमाओं के बारे में जब तक हमें पूर्ण रूपेण उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो जाए, तब तक हम किसी भी प्रकार से उस कल्चर के बारे में कभी भी अपने आप की फीलिंग्स या उन चीज़ों के बारे में उनको नहीं बता सकते। अगर हम बताना चाहें तो कभी भी हो सकता है, कभी उसकी मिसलीडिंग कोजेज होकर के और उस कल्चर के द्वारा कभी भी प्रॉब्लम्स के अंदर खड़ी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम्स बहुत सी बार सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। साथ ही साथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर जो है कि इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इट इज़ ए कल्चर इज ए एक्वायर्ड लर्नड बिहेवियर, लर्नड वे ऑफ द बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर मीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या जो एल्डर्स जो हमारे को कर रहे हैं, अगर आपका ये बचपन से लेकर के, क्या अगर हम साइंस के आधार पर देखें तो साइंस के अंदर सिगमंड फ्रेड थ्योरी, जिसके अंदर अगर ये लगाया जाए कि लर्न बिहेवियर किस प्रकार से मदर के द्वारा फर्स्ट टाइम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले टॉयलेट ट्रेनिंग, उसके बाद उनके अंदर फीडिंग के लिए, तो इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स, वो सब जो डेवलपमेंट किया जाता है, वो डेवलपमेंट ये नहीं कि हमें अपने आप आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा है। उन चीज़ों को लेने के लिए हमें कुछ कंसंट्रेशन दे करके उन चीज़ों को एक्वायर्ड करना पड़ेगा या अपने अंदर उन चीज़ों को लेना पड़ेगा। साथ ही साथ सेकेंड वन इज कल्चर ट्रांसमिटेड बाई वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मेनली अगर इस चीज़ को देखा जाए, वर्टिकल मीन्स इट इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, और हॉरिजॉन्टल मीन्स इट इज़ वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। तो अधिकांशतः जो देखा गया है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हमारे अंदर मिलता है, लेकिन जहाँ पर हमारा सेकेंडरी ग्रुप जहाँ डेवलप हो जाते हैं, कि जहाँ पर फ्रेंड्स या फिर स्कूल्स के अंदर जब हम जाते हैं, तो स्कूल्स एक सेकेंडरी ग्रुप है, तो वहाँ जा कर के जो हमें वहाँ जो कल्चर मिलता है, उस कल्चर को देख करके हम उस चीज़ को अपने अंदर डाल लेते हैं। उसी प्रकार से अगर देखें, स्कूल्स के अंदर हमारा कल्चर कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज लाइफ के अंदर जाते हैं तो सडनली हमारा कल्चर सडनली वहाँ पर क्या होना लगना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, तो उसको एज क्या कहा गया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। साथ ही साथ थर्ड वन इज कल्चर इज आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मीन्स कि कल्चर हम बहुत देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कल्चर हमें उसके जैसा बनना है, या हमारे अंदर वो आइडियाज आते हैं कि हमारे अंदर इन चीज़ों को करना चाहिए। तो हर बार एक नए आइडियाज़ का जन्म होता है, और वो आइडियाज़ जब समाज के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं और उस चीज़ का इम्प्लीमेंट होकर के उन चीज़ों का एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको यदि क्या कहा जाता है, इट इज़ ए आइडियलिस्टिक। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज एडोप्टिव, कि जहाँ पर अगर हम कहें आइडियलिस्टिक, कि हम किसी दूसरे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हमने सोचा नहीं है, हमने अपने अंदर नहीं लिया है। लेकिन एडोप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं कि हम सोचने के साथ साथ उस कल्चर को अपने आप के अंदर समाहित करते हैं, और उस चीज़ को कंटिन्यूसली हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज़ को करना फॉलो कर देते हैं। तो उस चीज़ को हमने ऐसे क्या कहा, इट इज़ ए एडोप्टिव कल्चर। नेक्स्ट वन जो कहला एडोप्टिव, यहाँ पर बहुत सी बार हम देखते हैं दूसरी जगह पर जो चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन दूसरी सोसाइटी के कल्चर में वो मौजूद है, वो चीज़ें अगर हमें अच्छी लगी तो उन चीज़ों को हमने अपने अंदर क्या कर लिया, एडॉप्ट कर करके अपने अंदर हम उन चीज़ों को फॉलो करने लग गए, तो वो कल्चर हमें क्या कहलाएगा, इट इज़ ए एडोप्टिव कल्चर। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, कल्चर इज कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव। कंटिन्यूस मीन्स क्योंकि बचपन से लेकर टिल एंड तक हमारे जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि हर जगह पर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्सपीरियंस अलग अलग सेटिंग के अंदर हमें अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। जब हम अपनी लाइफ अलग अलग सेटिंग में जीते हैं, तो अलग अलग सेटिंग के अंदर डिफरेंट डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, उन डिफ़िकल्टीज के आधार पर हमें अपने आप को माउल्ड करना होता है, और जब हम अपने आप को माउल्ड करते हैं तो नियरली नेचुरली हमारा कल्चर भी क्या हो जाता है, माउल्ड होता है। तो वो कंटिन्यूसली जो पहले जो चीज़ें थी उसके अंदर रिफाइनिंग हो करके और उस चीज़ का रिप्लेसमेंट होकर के न्यू थिंग्स उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है तो वो हमेशा चेंज की ओर अग्रेसिव करता है। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग मेनली द ग्रेटिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज,
कि हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए, जो कि बायोलॉजिकल जो हमारी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल और सोशल दोनों ही नीड्स या डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके, कि हम वास्तव में इस समाज में रह करके जो भी हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ से मिल चुकी है। तो उन चीज़ों को हमने क्या कहा, इट इज़ ए ग्रेटिफाइंग ऑफ द कल्चर। नेक्स्ट वन इज कल्चर इज वेराइज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। मीन्स हर सोसाइटी के अंदर, अगर आप हिंदूज के अंदर भी देखेंगे तो हिंदूज में भी अलग अलग हैं। अगर हिंदूज के अंदर आप ब्राह्मण्स में जाएंगे उनका कल्चर अलग है, अगर आप वैश्यों में जाएंगे उनका कल्चर अलग है, या फिर जिसके अंदर अगर आप ठाकुर या फिर अदर जो कास्ट हैं, तो हर कास्ट के अंदर अगर हम जाते हैं, अपर कास्ट टू लोअर कास्ट, हर जगह उस कास्ट के अंदर जो कल्चर का जो डिनोशन है, वो जो कल्चर की जो प्रैक्टिसेज हैं, वो प्रैक्टिसेज हर बार चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट वन, कल्चर फुलफिल्स द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि यस इट इज देयर, क्योंकि हर कल्चर जो है, क्योंकि हम कल्चर को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ओनली कि जो हमारी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा उस चीज़ को हम आगे ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के आधार पर उस चीज़ को लेते हैं। तो हमारी नीड्स को या जो भी डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को वो क्या करता है, पूरा करता है। तो इसीलिए कल्चर की जो बेसिक जो थिंग्स हैं, वो बेसिक थिंग्स इनके द्वारा इन चीज़ों को कंप्लीट हो जाती हैं। तो दैट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट वन जो आता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर के अगर हम यहाँ पर कहें, कल्चर जो है, कल्चर के बारे में कभी भी इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि कल्चर का जो जन्म है वो कब हुआ, ये कभी भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। कल्चर का जो इवोल्यूशन है वो मेनली अगर आर्किटेक्टोलॉजी के आधार पर देखा जाए, तो जब समय समय पर जो पुराने समय के जो सिक्के या उनके जो प्रचलन के द्वारा या जो पुरानी सभ्यताएं हैं, उनके जो हमें अवशेष मिलते हैं, उन अवशेष के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो कल्चर है वो कल्चर बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, या फिर जो आइडियल्स हैं या फिर कवि हैं या फिर जो हथियार मिलते हैं, उनके आधार पर कि ये इतने वर्ष पुराने हैं, उन वर्षों के आधार पर इस चीज़ का हम डिनोमिनेशन करते हैं कि वास्तव में कल्चर इस प्रकार का उस समय रहा होगा। और आज अगर उस कल्चर को, उस कल्चर से लेकर के, ओल्डन डेज के कल्चर से लेकर के आज के कल्चर को अगर हम देखें, तो उसके अंदर दिन रात का अंतर है। और यही चीज़ें जो डिसाइड करती हैं वो आगे जा कर के हमें सोशल चेंज की ओर अग्रसर करती हैं, क्योंकि हर समय पर अलग अलग चीज़ों का निर्धारण होना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ इसी प्रकार, इसलिए हम ये कभी ये नहीं कह सकते कि कल्चर का एक निर्धारित समय है, उसके बारे में हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इवोल्यूशन के अंदर हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वे कि ये स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूसली ये चलता हुआ आ रहा है, जो कि क्लूज के द्वारा ही हमें ये मिलता है। साथ ही साथ जो कल्चर है मेनली अलग अलग जगह पर कि जो इवोल्यूशन के अंदर जो देखा गया, अधिकतर 3 प्रकार की चीज़ों को मेनली देखा गया। उसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उसमें फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो कि जो रिफ्लेक्ट करता है वो सेंट्रल वैल्यूज जो हैं कल्चर की या सोसाइटी की, जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के द्वारा हार्मोनी और स्टेबिलिटी के आधार पर इन चीज़ों को सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल किस प्रकार से इस चीज़ को रखता है, या फिर एक कल्चर के द्वारा अगर हम किसी दूसरे कल्चर को हमारे अंदर जोड़ते हैं, या फंक्शनल जो कल्चर है कि हमारे जो रेगुलर कल्चर है उसके अंदर मॉडिफाई करके किसी दूसरे कल्चर की अगर उसमें एंट्री होती है, तो उसको हम कह सकते हैं सब कल्चर उसके अंदर डिनोट होकर के और अपने आप को वहाँ पर मोटिवेट करते हैं, जिससे कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। कॉन्फ्लिक्ट जो कल्चर है, कॉन्फ्लिक्ट कल्चर के जहाँ पर दो कल्चर एक साथ मिल जाएं और उन दो कल्चर्स के अंदर हम सोशल जो इक्वलिटी है, जिसके अंदर की वैल्यूज, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ जोड़ते हैं कि कौन सा कल्चर कहाँ पर हमें बेनिफिटेट कर रहा है, कि वास्तव में हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम कहें, आज बहुत से व्यक्ति हैं, आज यंग जो जनरेशन है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के आधार पर सोचती है, जबकि जो ओल्डन जनरेशन है वो ट्रेडिशनल के आधार पर सोचती है।
तो जहाँ पर जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स और यंगर्स, जो यंगर्स के बीच में जब बात होती है, तो वहाँ पर जब वो एल्डर्स कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं, एल्डर्स उस चीज़ को पाने के लिए लॉन्गेस्ट रूट देख करके अधिकांश से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एल्डर्स शॉर्टेस्ट वे के अंदर उस चीज़ को इजीली प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों के अंदर जब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो इस प्रकार का जो कल्चर है वो हमें एक पर्सपेक्टिव देता है कि वास्तव में जो कल्चर है वो कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर हमें देखने को मिलता है। और एक जो आपका आता है इंटरएक्शन पर्सपेक्टिव जो कल्चर है, जो कि हमें मॉडिफाई करना होता है या मेंटेन करना है कि जो हम एवरीडे की जो सोशल लाइफ है, उस सोशल लाइफ के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, उन चीज़ों के अंदर जहां हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, तो एक्शन के द्वारा के इंटरएक्शन के आपस में उन चीज़ों को एक दूसरे से मॉडिफाई करते हुए हम अपने आप को डेवलप करें, तो इस प्रकार का जो कल्चर है वो आपका इंटरएक्शन प्रोस्पेक्टिव कल्चर कहलाता है। मेनली नेक्स्ट जो आता है आपका कल्चर के जो टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स का जो कल्चर होता है, उसमें फर्स्ट वन जो है मटेरियल कल्चर, या फिर इसको हम कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक कल्चर, जो कि मेनली आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या पीपुल्स के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं उनको जो डेवलप किया जाता है, उस कल्चर को हम कहते हैं मटेरियल कल्चर, जिसके अंदर की हमारे होम्स, नेबरहुड, सिटीज, स्कूल, चर्च, टेम्पल्स जो हैं, ऑफिसेज या उनके अंदर जो हमारे को देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों के अंदर, या फिर जो फैशन है कि ओल्डन फैशन और न्यू फैशन, हर समय अलग अलग चीज़। अगर हम एग्जाम्पल, अगर मोबाइल, मोबाइल भी इट इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियलिस्टिक कल्चर, कि जहाँ एक मोबाइल कीपैड से स्टार्ट हुआ और आज आईपैड एंड्रॉयड के अंदर आ गया, और हर बार हम देखते हैं कि जब भी उसके अंदर नई चीज़ आती है, तो उस नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड चीज़ को छोड़ देते हैं। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो जाता है मटेरियलिस्टिक कल्चर। उसी प्रकार से अगर हम हमारे ड्रेसिंग पैटर्न को देखें, तो ड्रेसिंग पैटर्न में भी हर बार एक नई फैशन आती है, नई डिजाइन आती है, और उस नई डिजाइन को हम क्या करते हैं, हमारे अंदर उस चीज़ को एडॉप्ट करके हर बार कम्युनिटी से अलग दिखते हुए अपने अंदर उसको एडॉप्ट करते हैं। तो एडॉप्टेशन की इन चीज़ों को लेकर के कि जो चीज़ फिजिकली चेंज कर सकते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी जो कंडीशंस है या सभी ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट मटेरियलिस्टिक कल्चर के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। सेकंड वन जो आपका कल्चर आता है वो आता है नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, कि वो कल्चर जो कि हम उसको अधिकांशतः चेंज नहीं कर सकते, यस उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एंटायरली उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर है, जिसके अंदर के हमारे सोशल रोल्स, रूल्स, एथिक्स और बिलीफ्स जो कि बहुत समय पहले से जो बने हुए हैं, उनके अंदर चेंजेस करना हमारा आसान काम नहीं होता है। जो नॉन मटेरियल के अंदर वो चीज़ें जो कि हम जिनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो हर व्यक्ति के अंदर वैल्यू के रूप में हमेशा मौजूद रहती हैं, तो उस प्रकार के कल्चर को हमने क्या कहा, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर कहा। साथ ही साथ इन दोनों ही कल्चर के अंदर बहुत सी बार क्या होता है कि क्लेश होता है, आपस में एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वास्तव में कल्चर और नॉन कल्चर दोनों ही टाइप के जो कल्चर है उनके अंदर किस प्रकार से हम वो करें। तो जब दोनों के अंदर गैप या टाइम इंटरवल अगर दोनों के अंदर आ जाए, तो और टाइम इंटरवल के द्वारा उसके अंदर चेंजेज आए, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर दोनों के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेज आ जाता है, तो उस कल्चर को हमने क्या कहा, कल्चरल लेक कहा गया, जो कि हर समाज के अंदर हमेशा देखने को मिलती है कि किस प्रकार से इसके अंदर चेंजेस आए। नेक्स्ट वन जो आता है आपका डाइवर्सिटीज एंड यूनिफॉर्मिटीज ऑफ कल्चर, क्या क्या कल्चर के अंदर समानताएं हैं और क्या उसके अंदर असमानताएं हैं। कि जहां पर डाइवर्सिटी की बात करें, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जिसके अंदर की अलग अलग स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स के अंदर भी अगर हम जाएं तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हर जगह पर क्या है, कल्चर अलग अलग रूप के अंदर देखने को मिलता है।
तो उस कल्चर के अंदर जो डाइवर्सिटी आती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि कल्चर के अंदर जो डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, रिलीजियन, जैसे कि रिलीजन मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के अंदर अगर हम कल्चर को देखें तो हर व्यक्ति का कल्चर अलग अलग है, जो कि उसकी विभिन्नताओं को प्रकट करता है। सेकेंड वन आता है हमारा लैंग्वेज, कि इंडिया के अंदर वैसे देखा जाए तो एक कॉमन जो लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं मदर टंग, दैट इज हिंदी। लेकिन अधिकांशतया हर स्टेट की अपनी एक खुद की अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम कहें राजस्थान राजस्थानी, केरला मलयालम, तमिलनाडु आपका तेलुगु, आंध्रा के अंदर उनकी अपनी अलग लैंग्वेज चलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेज का वो रहता है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, लेकिन वहाँ सभी के अंदर हिंदी आपको मिक्स मिलेगी। और एक नया कल्चर जो कि मॉडर्नाइजेशन के आधार पर कि इंग्लिश उसके अंदर होनी चाहिए, तो इंग्लिश भी उसके अंदर एक साथ आ गई। तो बहुत से व्यक्ति उस चीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत से व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो उसकी लाइफ अलग अलग है। तो लैंग्वेज को भी हमने क्या कहा, इट इज़ डिफरेंट। हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंग्वेज भी हमारी अलग अलग देखने को मिलती है। थर्ड वन जो आता है आपका वे ऑफ लाइफ, कि वे ऑफ लाइफ के जहाँ पर अगर हम समाज को देखें या स्ट्रक्चर को देखें, सोशल स्ट्रक्चर, उसमें भी हमें स्ट्रक्चर को भी हमने 3 भागों में बांटा, हाई क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली। तो हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तीनों के अंदर अगर लिविंग स्टैंडर्ड को देखें तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ही अलग अलग होगा। उनकी वे ऑफ लाइफ, किस प्रकार से हमें जीना है, हर प्रकार के उनकी लाइफ के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिया गया है, उस ट्रेडिशन को हम किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ट्रेडिशन है। लोकेलिटी जो है, लोकेलिटी एंड जियोग्राफिकल एरियाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट के द्वारा भी हमारी जो कल्चर है वो कल्चर क्या होता है, अलग अलग तरीके से रहता है। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अगर पहाड़ों पर रहता है तो उनका वहाँ का रहने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके से होगा कंपेयर जो कि बिल्कुल अपने नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, या फिर समुद्री एरियाज के अंदर अगर कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनकी लोकेलिटी और जियोग्राफिकल एरिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंदर की अलग अलग समय पर, जैसे कि अगर हम कहें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वहाँ पर आधे समय पर आपका आइस फॉल होता है, या फिर जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट कम्प्लीटली एंटायरली चेंज होता है। तो वहाँ 6 महीने इकोनॉमिक और वो गतिविधियाँ चलती है, तो उनका कल्चर उस प्रकार से अलग होगा। और उस समय वो अपना, और जिस समय एडवर्स सिचुएशंस आती हैं तो उस समय वो अपना सारा राशन और सारी चीज़ें इकट्ठे करके, उसका कल्चर उस समय उनका अलग तरीके से हो जाता है। एक तरह से वो कंप्लीटली जो पार्ट है वो एक आइसोलेटेड पार्ट के रूप में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो अलग अलग समय पर लोकेलिटी और जियोग्राफिकल एरियाज के आधार पर कल्चर को भी हम डिनोट कर सकते हैं। साथ ही साथ फैमिली एनवायरनमेंट, कि जहाँ पर फैमिली, क्योंकि जहाँ फैमिली को हम देखते हैं तो फैमिली को भी हम अलग अलग भागों के आधार पर, के मेनली फैमिली को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। कि जहाँ न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है, और जहाँ पर जॉइंट फैमिली है वहाँ पर आपका ट्रेडिशनलिज्म है। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मॉडर्नाइजेशन जहाँ पर आ गया, तो मॉडर्नाइजेशन उनका कल्चर एक अलग तरीके से चलेगा, कि वहाँ पर वो अधिकतर आपका जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पर हमें सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि परिवार के हर सदस्य को अपनी डिजायर्स पूरा करने के लिए समय लगता है। डिजायर्स आपकी बहुत हो सकती हैं, लेकिन वो डिजायर्स सभी फुलफिल हो जाएं, दैट शुड नॉट बी श्योर। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पर सेकेंड वन आपका जो आता है यूनिफॉर्मिटी, कि यूनिफॉर्मिटी के अंदर हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, कि जहाँ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स के अगर होगा तो सभी जगह एक समान होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ होती है तो उससे सारी चीज़ इफेक्टेड होती है। कि जहाँ पर अभी कल्चर के आधार पर देखा जाए, अभी जो महामारी के रूप में चल रहा है, यह हिस्टोरिकली इवेंट हो रहा है, कि जो कि बहुत समय पहले, कि जहाँ 70s या उससे पहले
कभी प्लेग या वो महामारी आई थी, तो उस समय एक अपना अलग इवेंट था, तो वो कल्चर अलग था। आज जो कल्चर है, चीज़ें आज भी वही मौजूद है, उस समय भी वही क्वारंटाइन, वही आपका सोशल डिस्टेंस, हर चीज़ मौजूद थी। अगर आप इन चीज़ों का एविडेंस देखना चाहें तो आप चरक संहिता या फिर ओल्डन डेज की जो भी चिकित्सा पद्धति की बुक्स हैं उनको जाकर के अगर हम रेफर करते हैं तो ये सभी चीज़ें कि एक महामारी से किस प्रकार से निपटना चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पर हिस्टोरिकल रूप में देखने को मिलती हैं। तो वो एक्सीडेंट्स पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होंगे, लेकिन जो पहले हुए आज हो रहे हैं, आगे जाकर के ये हिस्टोरिकल कंडीशंस के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। तो ये इससे एक समाज नहीं, पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी इसके द्वारा अफेक्टेड हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसको कि क्या कहा गया, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन आता है आपका मोबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। मोबिलिटी के हर व्यक्ति की अपनी डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए कि हर व्यक्ति उन डिमांड्स को एक जगह पर रह करके पूरा नहीं कर सकता। कि जहाँ पर पहले जो हमारा देश था वो कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज के आधार पर देखा जाए जहाँ पर न्यू इन्वेंशंस हुए, टेक्नोलॉजी आई, डिस्कवरीज हुई, तो डिस्कवरीज होने से या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से व्यक्ति ने अपने कार्य करने के तरीके को बदला और उनके कार्य करने के तरीके को बदलने के आधार पर व्यक्ति ने अपनी मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट की, जो कि एक माइग्रेशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। बहुत से व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके भी दूसरे देश में भी जाकर के अपनी अर्निंग्स का साधन बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर, मोबिलिटी, जो कि हमारे को समाज के अंदर सभी जगह देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन जो आता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट होता जा रहा है उसी प्रकार से नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। कि जो चीज़ें अगर आप देखेंगे मटेरियलिस्टिक, कि जहाँ पर सिर्फ हमें पहले सिर्फ 2 मोटरसाइकिल देखने को मिलती थी, राजदूत और यजदी, अगर आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल्स के अंदर भी, टू व्हीलर्स के अंदर हमारे को बहुत सारी वेराइटी ऑफ चॉइस विल बी देयर। मेनली थिंग कि हमारे पास अर्निंग्स होनी चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए। नई डिस्कवरीज हर चीज़ के अंदर, मेडिसिन फील्ड के अंदर आप चले जाएं, साइंस में चले जाएं, या फिर आपका फार्माकोलॉजी के अंदर आप जाएं, मेडिकल साइंसेज के अंदर, या फिर एक समाज के छोटे तबके में भी जाएं, तो नई इन्वेंशंस जो हुए हैं, डिस्कवरीज जो हुई हैं, उनके द्वारा उन चीज़ का अलग अलग तरीके से हमारे अंदर प्रभाव होता है, जो कि सभी के ऊपर एक समान रूप से वो प्रभाव डालती है। नेक्स्ट वन जो आता है इंडिविजुअल हैबिट्स, कि हर व्यक्ति के इंडिविजुअल हैबिट्स हैं जो कि समानताएं हैं। बहुत से व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से व्यक्ति नहीं करते हैं। तो इंडिविजुअल हैबिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि एक समानता है या नहीं। नेक्स्ट वन जो आता है चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो कि अभी टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ें जो मिली आपको बताई गई, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपके टेक्नोलॉजी इसके अंदर मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे देखने को मिलती हैं। कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखें, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई जिसके द्वारा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा उत्पादन हम लेने लग गए, लेकिन उसकी सेकंड डिस्कवरीज भी हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं कि हम प्रोडक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़मीन की जो उर्वरकता है वो हम यहाँ पर खोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसीलिए आज डिस्कवरीज क्या कह रही हैं, इन्वेंशन ये कह रहे हैं कि व्यक्ति वापस पुराने जमाने की ओर जा रहा है। कि ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर जो चलती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो चलती थी, आज वापस व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अग्रसर होता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट वन जो आता है डिनोमिनेंट कल्चरल थीम्स। डिनोमिनेंट यानी कि जो चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, उन चीज़ों को हम अपने अंदर लेकर के कि प्रभाव डाल रही हैं कि वास्तव में ये चीज़ें एक समाज के इस कल्चर के अंदर मौजूद हैं या रिलीजियन के अंदर मौजूद हैं, उन चीज़ों को हम कंटिन्यूसली अपने अंदर एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कम अंडर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कल्चर। नेक्स्ट वन जो टॉपिक आता है आपका सब टॉपिक इसके अंदर ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। Transcultural society mainly seen into the culture traits
where the discovered one society to another society। यानी कि एक जगह एक व्यक्ति ने किसी भी चीज को प्राप्त किया और हम उस चीज को देख करके अपने अंदर उस चीज को लेने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, किसी के पास अगर फ्रिज आया तो उसकी चीज को देख करके हमारे अंदर भी उस प्रकार की चीज देखने को मिलती है, तो उस सोसाइटी के अंदर ये चीज मौजूद है, हमारे अंदर ये चीज मौजूद क्यों नहीं है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारे किसके अंदर, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी को डिनोट करती हैं। साथ ही साथ कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर विच इज मूवमेंट ऑफ द ट्रेड थ्रू टाइम, दैट इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स कल्चर जो भी पहले से जो ट्रांसमिट हुआ है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसलिए उसको ट्रांस कल्चर कहा गया। लेकिन किस प्रकार का कल्चर ट्रांसमिट हुआ, इट इज मॉडिफाइंग कल्चर, कि पहले की जनरेशन में जो था और आज की जनरेशन में जो कल्चर है उसके अंदर बहुत सारा अंतर आ गया, चेंजेस आ गए। और वो जो चेंजेस है वो किसके आधार पर, सोशल चेंजेस के आधार पर हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप कहेंगे कि अदर जो कंट्रीज है जैसे कि रोम और यूएसए, उनके अंदर जो है कल्चर है वो समय समय पर अलग अलग टाइप पर, अलग अलग समय पर आवश्यकताओं या हमारी नेसेसिटी के आधार पर वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया, ट्रांस कल्चर। नेक्स्ट वन जो आता है, जो दूसरी सोसाइटीज को फॉलो कर लेते हैं तो वो ट्रांस कल्चर सोसाइटी के रूप में कहलाता है। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। जैसे कि उसके अंदर फर्स्ट वन जो आता है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन, कि जहाँ पर आप कल्चर आज भी वही है, लेकिन अगर ग्रामीण परिदृश्य को देखेंगे और अर्बन एरियाज को देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको दिन रात का चेंजेस मिलेगा। कि जहाँ पर ग्रामीण परिदृश्य के अंदर हम वेट करते हैं कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट किया जाए, लेकिन अर्बन क्षेत्र के अंदर हम जाते हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ पर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए खुद को जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें हमारे पास मोबाइल या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर खुद के पर्सनल व्हीकल इतने हो गए कि हम खुद उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी जा करके ले सकते हैं। तो इसने बहुत इफेक्ट डाला है कि जहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पर कल्चर बहुत फास्ट है। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, प्रेस्टीज ऑफ द ट्रांसमिटेड कल्चर एंड इट्स पीपुल। नेक्स्ट थर्ड वन इज माइग्रेशन, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि माइग्रेशन जो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करना, वो आपका क्या कहलाता है, माइग्रेशन। फोर्थ वन जो आता है, द नीड फॉर सम न्यू एलिमेंट्स टू मीट ए क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स कि अगर किसी भी प्रकार की सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कि जहाँ पर जैसे कि हम कहें कल्चर, कि पहले हमारी जो पॉपुलेशन जो थी वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन थी, आज जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अगर 1947 की पॉपुलेशन को देखें और आज की पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गया, जबकि लैंड जो है वो लैंड आज भी उतनी ही मौजूद है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो नेचुरली सोसाइटीज भी बढ़ी और फैमिलीज भी बढ़ी। जब फैमिलीज बढ़ी तो आपकी जो कल्टिवेटिंग जो लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स है, उसके अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। और आज डिवीजन होते होते उस अवस्था तक पहुंच चुका है कि व्यक्ति के पास अपना खुद का आवश्यकताएं, जो उन आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर सकता। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति अपनी जो जहाँ पर उसका बर्थ प्लेस है उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह जाकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो उन न्यू एलिमेंट्स या डिजायर्स हैं जो उसके अंदर क्राइसिस आया है कि मैं अपनी फैमिली को किस प्रकार से सेव करूं। तो वो कल्चर हमारे को यहाँ देखने को मिला कि वो इस प्रकार से माइग्रेशन करके उन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को फिलअप कर रहा है। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, एडोप्टेबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द न्यू कल्चर। मीन्स जो हमें देखने को, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें जैसा कल्चर मिल रहा है उस कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि जहाँ पर अगर हम देखें रूरल एरियाज में जब हम थे तो हम ये सोचते थे कि सुबह शाम हमें मंदिर जाना चाहिए,
लेकिन जब अर्बन एरियाज के अंदर आ गए, यहाँ पर सिटीज बहुत बड़ी है लेकिन टेम्पल्स बहुत कम है। तो जहाँ हम डेली जाते थे, रिलीजियस जो चीज़ हम वहाँ पर फॉलो कर रहे थे, उन चीज़ों को यहाँ कंडीशनली वो चीज़ें क्या नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो पा रही है, तो हमने उस चीज़ को एडोप्ट किया। सेकेंड वन, हमारा लिविंग पैटर्न, कि जहाँ हम विलेज लाइफ के अंदर थे या रूरल एरियाज में थे, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन इतना नहीं है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर रहने का जो बेसिक हमारी जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा एरिया हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अर्बन सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसका डायामीटर कम है। तो जब डायामीटर उसके अंदर कम हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें कम जगह के अंदर अधिक व्यक्तियों को रहने की आवश्यकता महसूस हुई। और आज उन चीज़ों की वजह से यस, कल्चर हमने फॉलो किया, लेकिन उसके हमें नुकसान भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि जहाँ पर क्लोज कॉन्टेक्ट थे, वहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे कि जो कोरोना का जो इफेक्ट हो रहा है वो क्लोज कॉन्टेक्ट के अंदर ज़्यादा है। जहाँ की व्यक्ति अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, वहाँ पर कोरोना का इफेक्ट क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, कहाँ हम पास रह रहे हैं और कहाँ हम दूर रह रहे हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम उन कल्चर को भी यहाँ एडोप्ट कर रहे हैं कि जहाँ पहले हम खुले में रह रहे थे, आज हम पास पास रह रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की नीड्स के आधार पर हमने उस चीज़ को क्या किया, चेंज किया। तो देट इज अबाउट द फैक्टर जो कि हमारे कल्चर को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन जो आता है कि कल्चर के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे हेल्थ को और डिजीज सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो कि जिसके द्वारा कि बहुत सी चीज़ों को ट्रेडिशनली या कल्चरली या साइंटिफिकली वो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और उन चीज़ों को हम बिलीव भी करते हैं और मानते भी हैं, और बहुत से व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं मानते। तो उनके जो कल्चरल के द्वारा हमारे हेल्थ के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेज है वो क्या क्या है, जैसे कि नंबर वन, कीपिंग द न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट्स एट द स्पेशलाइज्ड प्लेसेस, कि अगर मेडिकल साइंस के आधार पर देखा जाए, किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस होता है या किसी भी प्रकार के उसको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटल्स के अंदर दिखाना चाहिए। लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट अनदर साइड उस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे जो पूर्वज या हमारे जो एल्डर्स हैं, वो एल्डर्स ये मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको हॉस्पिटल से पहले एक रिलीजियस स्थान पर इनको ले जाना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए, वो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है वो वहाँ पर ठीक हो जाएं। एक्सेप्टेड कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन साथ के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी साथ में चलना चाहिए, ये आज की नीड है। लेकिन कल्चर, पहले जो कल्चर था वो ये फॉलो करता था कि मिसकंसेप्शंस जो थे, उन मिसकंसेप्शंस के आधार पर हमें उन चीज़ों को देखने को मिलता था। नेक्स्ट वन, आउटरीच फैमिली थॉट अबाउट द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन इज ए गॉड्स गिफ्ट, कि जहाँ पर आज हम फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स है उनको यूटिलाइज कर करके एक जो फैमिली है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली नॉर्म के अंदर ले आए। लेकिन ओल्डन डेज के अंदर जहाँ पर कि हम अगर एल्डर्स से जहाँ बात करते हैं, तो वो चिल्ड्रंस के बारे में कहते हैं कि ये तो हमारी गॉड ऑफ द गिफ्ट है या गॉड्स का गिफ्ट है। तो वहाँ पर क्योंकि वो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं दी गई, क्योंकि उनके समय में उस प्रकार का कल्चर चलता था। प्रेफरेंस ऑफ द मेल चाइल्ड, कि जहाँ पर प्रेफरेंस हुआ, अगर आप देखेंगे कि मेल चाइल्ड का जो कल्चर चला, कि मेल चाइल्ड क्यों, क्योंकि हमारी संतति या हमारी जनरेशन को एक मेल चाइल्ड आगे बढ़ाएगा। तो इसका जो कल्चर के अंदर इसको हर व्यक्ति ने एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या देखने को मिले, फीमेल फिटोसाइड, कि लास्ट जो 10 to 20 ईयर्स कि कुछ स्टेट्स ऐसी कंडीशन के अंदर आ गए कि जहाँ पर मेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और फीमेल्स की संख्या बहुत कम हो गई। आज फिर कल्चर चेंज हुआ कि फीमेल्स को बचाया जाए, अलग अलग तरीके से फीमेल्स को बचा करके मेल एंड फीमेल के जो रेशियो है उस रेशियो को क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन जो आता है आपका प्रोहिबिटिंग वेयरिंग ऑफ द फुटवेयर इनसाइड द हाउस,
जो कि एल्डर्स, यस इट इज करेक्ट कि कल्चर के आज के कल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन में हम हर जगह फुटवियर लेकर के परिवार के घर के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ओल्डन डेज के अंदर जो कल्चर था उस कल्चर में नहीं घूम सकते थे, क्योंकि उनके आधार पर कि हम बाहर कहीं से भी आए तो वो उनके आधार पर एक डर्टी थिंग्स थी कि अगर हम अंदर लेकर के आएंगे तो हमारा घर भी उस चीज़ से गंदा होगा। नेचुरली अगर साइंटिफिक वे के अंदर देखा जाए तो बाहर से अगर हम आ रहे हैं और अगर फुटवियर्स को घर के अंदर लेके जा रहे हैं, हो सकता है उन फुटवियर्स के अंदर वायरस या फिर कोई भी डिजीज या कंडीशन हो जो कि कंटामिनेटेड होकर के हमारे परिवार के या घर के अंदर चली जाए, जिससे कि तो उस प्रकार का कल्चर वहाँ पर देखने को मिला जिससे कि हेल्थ और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन आता है मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू सर्कमसीजन। क्या अगर मिसकंसेप्शन यहाँ देखा जाए तो इसको क्या है कि बहुत से व्यक्तियों ने रिलीजियन से जोड़ लिया कि सर्कमसीजन ओनली ए पर्टिकुलर रिलीजियन का क्या है सिंबल है, इस सिंबल के आधार पर कि नहीं ये तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर इसको हेल्थ और डिजीज के आधार पर देखा जाए तो सर्कमसीजन इज नॉट ए बैड थिंग, क्योंकि सर्कमसीजन के द्वारा हम इन्फेक्शन या और भी कोई बहुत सी डिजीज हैं उन डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली साइंटिफिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले इसको कल्चर के आधार पर इन चीज़ों को नहीं माना जाता था। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, जो आपकी मैरिजेज हैं उन मैरिजेज के अंदर भी मेंटल और जो ब्लड रिलेशंस के अंदर जो मैरिजेज होती हैं उसके अंदर फिजिकल और मेंटल कंडीशन या मेंटल रिटार्डेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कार्डियक डिजीजेज देखने को मिलती हैं। इसीलिए अधिकांशतया सेम ब्लड रिलेशंस के अंदर कभी भी मैरिज नहीं करनी चाहिए, जो कि एक कल्चरली पहले से इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, आज भी हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉकिंग, ऑयल बाथ, ब्रिक पाउडर जो हैं इन चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो ब्रेथ या टीथ हमारे क्या होते हैं, पहले ओल्डन डेज के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते थे, जैसे कि नीम स्टिक का यूज़ करना या फिर ब्रिक पाउडर के द्वारा इन चीज़ों से हमारे टीथ को क्लीन करना, ये ओल्डन डेज का था। आज जो कल्चर है, आज कल्चर के अंदर आपका बहुत सी नई चीज़ें आ गई जिसके अंदर टूथपेस्ट के द्वारा उन चीज़ों को करते हैं। तो पहले भी उन चीज़ों को करते थे जिससे कि माउथ हाइजीन या ओरल हाइजीन को हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वन जो आता है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग बाथ, कि अगर हम जल्दी उठ करके अर्ली टू बेड, जल्दी अगर हम सोने जाते हैं और जल्दी उठ करके अगर बात लेकर के उस चीज़ से करते हैं तो हम फिजिकली फिट रहते हैं और साथ ही साथ हमारे पूरा दिन या होल डे हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो उन चीज़ों का देखते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है आपका ड्रिंकिंग तुलसी वाटर एंड स्टोर्ड कॉपर वेसल वाटर एवरी डे गुड फॉर द हेल्थ, कि अगर तुलसी वाटर को जहाँ देखा जाए कि कल्चरली तुलसी का एक अपना अलग महत्व है, जिसके आधार पर इसको रिलीजियस थिंग के अंदर भी बहुत स्थान दिया गया है, जिससे कि लेकिन अगर साइंटिफिक वे के अंदर देखा जाए तो तुलसी एक एंटीबायोटिक के रूप में भी कार्य करती है। साथ ही साथ बहुत सी बार स्टडीज में, डिस्कवरीज या इन्वेंशन के अंदर ये देखा गया है कि तुलसी के अंदर एंटी मलेरियल और भी चीज़ें पाई जाती है, जो कि आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर एक बेस्ट मेडिसिन है, जिसको अगर कंटिन्यूसली लिया जाए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सेकेंड वन कॉपर वेसल, कि अगर रात को हम पानी कॉपर के वेसल के अंदर भर करके रख देते हैं, अगर उसको सुबह पीते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट ला करके और हमारे जो बाउल के जितने मूवमेंट्स हैं या गैस्ट्रिक जो सिस्टम है उसको ठीक रखता है। नेक्स्ट वन जो आपका जैसे कि कंटाजिनियस जो डिजीजेस थी या कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारे बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स अगर होता है, मीजल्स होता है, तो कल्चरली बहुत सी चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि नीम लीव्स को घर के बाहर डोर के ऊपर बांध देना या फिर उसके नीचे बिस्तर के आपका जो बेड है, बेड के नीचे नीम लीव्स को रख देना या फिर नीम लीव्स के वाटर के द्वारा 7 या 8 दिन के बाद उनको नहलाना, जिससे कि वो व्यक्ति इन्फेक्शन से फ्री हो जाए। ये मेडिकल साइंस सोचती है और कल्चरली उस चीज़ को कि नहीं कि नीम के द्वारा और इन चीज़ों के द्वारा क्या है
कि हम इस कम्युनिकेबल डिजीज को एक घर से दूसरे घर या कम्युनिटी के अंदर जो स्प्रेड होती है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए एंट्रेंस के ऊपर इन चीज़ों को लगाया जाता था। नेक्स्ट वन, पर्दा प्रथा। मोस्टली हर समाज के अंदर पर्दा प्रथा सिस्टम लागू है, लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के अंदर वो चीज़ें नहीं है। तो अधिकांशतः ये देखा गया साइंटिफिक जो आपकी रिसर्च के अंदर भी, कि जहाँ पर्दा प्रथा सिस्टम जहाँ पर था या जहाँ पर है वहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। और उस प्रकार, और जहाँ पर पर्दा प्रथा सिस्टम नहीं था तो उनके अंदर वुमेन्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की मात्रा कम देखने को मिलती है। तो ये एक कल्चरली इन चीज़ों को भी, कल्चर के अंदर के पर्दा प्रथा के अंदर भी अगर पर्दा प्रथा होगी तो उसका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट विटामिन डी की कमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन जो आता है, क्लीनिंग ऑफ द हाउस, टेकिंग हाइजीन केयर, रंगोली, और ये सभी जो हैं ये पॉजिटिव जो एनर्जी है घर के अंदर के, अगर हम घर को गंदा रखेंगे या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का उसको वॉश नहीं करेंगे तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि एक नेगेटिव एनर्जी हमारे को देखने को मिलती है। तो कल्चर के आधार पर कि अगर हम घर को साफ रखेंगे, वहाँ पर रंगोली अगर डेली करेंगे, नॉर्थ इंडिया के अंदर इस प्रकार का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं तो अधिकांशतः हर घर के बाहर डेली वो अपने घर के बाहर, घर की जब साफ सफाई हो जाती है तो उसके बाद रंगोली सजाते हैं। तो वो भी किस चीज़ को, कि नहीं हमारा घर साफ रहे, एक उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाए, जिससे कि एक जो पूजा या घर के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है जिससे कि आदमी पूरे दिन एक अच्छे तरीके से अच्छा फील करता है। नेक्स्ट वन आता है आपका, डूइंग मेडिटेशन विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। यस, मेडिटेशन, क्योंकि हम हमारे बॉडी की कैपेसिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार आज हर व्यक्ति कि जहाँ मेडिटेशन पहले क्या है इसकी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि व्यक्ति इतना फिजिकल वर्क कर लेता था, लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन या आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या व्यक्ति के पास टाइम नहीं होने के कारण वो क्या नहीं कर पाता है, अपना खुद का वो फिजिकल जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम उन चीज़ों को फिलअप करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। साथ ही साथ बहुत सी जो नेक्स्ट जो आता है पॉलीजेनिक, जहाँ पर बहुत सी उसके अंदर सोसाइटीज़ के अंदर जो स्मॉल फैमिली नॉर्म, हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, लेकिन बहुत सी बार कल्चरली कि जहाँ पर बहुत सी फीमेल्स जिनके कि हो सकता है किसी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण बच्चे नहीं होते थे, या फिर ओल्डन डेज के अंदर जहाँ पॉलिटिकल जो लाइफ थी कि राजा महाराजा जो लोग थे उनके अंदर बहुपत्नी सिस्टम लागू था, तो वहाँ पर भी कल्चर के आधार पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन हो सकता है बहुत सी बार कल्चरली वो चीज़ सही हो, लेकिन आज के अंदर अगर उसका हेल्थ और उसके ऊपर इफेक्ट देखा जाए कि जहाँ परिवार की संख्या बढ़ेगी तो नेचुरली उनका भरण पोषण के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आएगी। और लास्ट वन इज सुपर स्टिटियस बिलीफ, यानी कि हम सुपर पावर भगवान के ऊपर, आज भी अगर हम, कल्चर ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के कभी भी हम किसी भी चीज़ को अच्छा करते हैं तो बहुत से व्यक्ति हमें कल्चरली कहते हैं कि भगवान आपका भला करेगा। और बहुत से व्यक्ति कि जब हम किसी व्यक्ति का कुछ जहाँ कल्चरली रूप में हम उसको कुछ कहते हैं, उसको लगता है कि इसके द्वारा मेरा यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है, तो हमारे को क्या है, वो ये कहता है कि आप इतना गलत क्यों कर रहे हो, आपको भगवान देख रहा होगा, तो हो सकता है वो हमें उसका नुकसान हो। तो बहुत सी चीज़ें हम चाहते हुए और न चाहते हुए, कल्चरली वो चीज़ सही है, लेकिन हमें उस सुपर पावर के वजह से हमें डराया जाता है। तो इस प्रकार का जो कल्चर है, जिसके अंदर की कल्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि कल्चर क्या है, कल्चर को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे आइडियल्स क्या हैं, हमारी नॉलेज क्या है, और हमारा वे ऑफ पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार से समाज के अंदर रह करके करना चाहिए, ये सब चीज़ें कल्चर के द्वारा हमारे को सीखने को मिलती हैं। और कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ मिलती है तो उसको हमें सीखना चाहिए, और अच्छी चीज़ के लिए हमें उस चीज़ को अपने अंदर एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो कि हेल्थ के लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बुरी हैं, तो उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट और नेगलेक्ट
दोनों ही चीज़ें वहाँ पर हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। तो that is about the that is about the brief and discussion regarding the culture. Thank you very much.